Hi again friends, welcome back to Dev Sir's Mathemagic. Today is a problem which is present in the 11th standard textbook as well as in the 12th standard. कौन सा टॉपिक है ये? So let's see. 11th standard colleges have just begun, but your classes have already started, coaching classes. So you might have come across Cartesian and Polar coordinates. Even if you haven't, यहाँ पे पक्का हो जाएगा आपका. Don't worry. As regards 12th का तो चालू हो गया, अप्रैल में कॉलेज चालू हो गया. It is there in trigonometric functions for 12th also. So let us straight away go to the problem. All set हो गए. Cartesian coordinates क्या है और polar coordinates क्या है ये पहले मैं डिस्कस करूंगा. Right? देखो अभी. Cartesian and polar coordinates. I have taken a point on P, xy, on a standard circle. Standard circle means where the origin is the center. This is the x-axis, this is the y-axis. Origin जिस सर्कल का सेंटर है उसको स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं. R is the radius of the standard circle. Okay, this diagram we have seen most times in 11th standard for basic trigonometric function. Standard circle याद रखो. Origin is the center, R is the radius. Point P xy standard circle पे लिया है. PM perpendicular to x-axis and this is your OM. If we take this as the origin, ये OM है, ये PM है. So naturally by definition of x coordinate and y coordinate, ये x coordinate हो गया, ये y coordinate हो गया. ओके. अभी कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें फर्क क्या है? When I take pxy, यूजुअल एक पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. आवर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे ग्राफ पेपर पे हम लोग प्लॉट करते हैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, दीज आर नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y. ओके, अभी 10th में तो किया है ग्राफ पेपर में, लेकिन आपको वर्ड नहीं मालूम था. ओके, सो x y मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. अभी 11th स्टैंडर्ड में और एक चीज है, इंस्टेड ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इंस्टेड ऑफ x y, पॉइंट P can be represented by r theta. This is r, this is theta. x y के जगह r theta. r means what? Radius of the standard circle. Theta means what? Angle made by the radius with the x axis. Okay? Coordinates का मीनिंग क्या है दोस्तों? Coordinates का मीनिंग to locate the point on the paper with reference to x and y axis. That is the meaning, that is the use, that is the purpose. So either you can do it by x y or r theta से भी कर सकते हैं. मतलब क्या? If r is equal to 5, you draw a standard circle of radius 5. Example दे रहा हूँ. R अगर 5 सेंटीमीटर्स का लिया आपने, ड्रॉ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स एंड इफ थीटा इज 30 डिग्रीज, तो ये 30 हो गया. सो 5 सेंटीमीटर्स पे इफ यू मेजर 30 डिग्रीज विथ ए प्रोट्रैक्टर से मेजर किया एग्जैक्ट 30 डिग्रीज, यू विल गेट OP. इमेजिन 5 सेंटीमीटर्स लो, 30 degrees ले लो by protractor, you will get the position of point P again. So coordinates का meaning है to locate the point anywhere with reference to x and y axis. So the location can be done either by Cartesian coordinates और आज अभी नया सीख रहे हो polar coordinates. Polar coordinates means r theta, x y लिखने का ही नहीं, सिर्फ रेडियस और एंगल से पॉइंट लोकेट करने का, बस उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. नथिंग डिफिकल्ट. राइट. नाउ
there are certain formulae which we are going to see. X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. How did I get this? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने सीखा है cos थीटा का नया डेफिनेशन x अपॉन r, x अपॉन r, sin थीटा का नया डेफिनेशन y अपॉन r. थीटा कैन बी एनीथिंग. Therefore x is equal to r cos theta, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y is equal to r sin theta. Just remember this, where r is equal to root of x squared plus y squared. r का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हाउ डिड आई गेट दिस? यूज पाइथागोरस. इन ट्रायंगल OPM, if you use Pythagoras, what do you get? r squared is equal to x squared plus y squared. तो अगर स्क्वायर रूट लिया, राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर रूट ले लो. दैट इज हाउ आई गेट दिस r. नेक्स्ट फॉर्मूला tan थीटा. ट्रायंगल OPM में tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला भी यूज कर लो. 10th स्टैंडर्ड में याद है ना? ट्रायंगल OPM, tan थीटा क्या है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. tan theta opposite side upon adjacent side, y upon x. Okay, up till here everything is fine. Now comes the important part of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function यानी कि simple है, you just have to take tan sin on the right hand side. Meaning what? Tan theta equal to y upon x है. So if you want to find theta, keep theta on the left hand side, tan goes on the other side as tan inverse. Symbol है tan raised to -1, but it is read as tan inverse. Inverse trigonometric function का चैप्टर आगे है 11th स्टैंडर्ड में. ओके, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें देखने वाले हैं. बट नाउ रिमेंबर, यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू व्हाट इज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. So if tan theta is equal to y upon x, अगर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड को रखा, tan goes on the other side as tan inverse y upon x. एक एग्जांपल देता हूं मैं. सबको मालूम है tan of 45 degrees is 1. तो if I take tan inverse on the right hand side, tan goes on the right hand side as tan inverse 1. So tan को यहाँ पे लिया तो क्या मिल गया? tan inverse 1. What remains? 45 degrees. Okay. Similarly, tan 60 is equal to root 3. Tan goes on the other side as tan inverse. So tan inverse root 3 equal to 60 degrees. Simple है. Tan 30 is 1 upon root 3. Tan goes on the other side as tan inverse. So tan inverse 1 upon root 3 equal to 30 degrees. So when you take trigonometric functions on the other side, it goes as inverse function. Okay, तो इसका इंट्रोडक्शन आज ही हो गया. What is an inverse trigonometric function, right? See, अभी यहाँ पे अगर if I want to write like this, ऐसे लिखने के बजाय if I write like this, see, tan theta is equal to y upon x. So tan goes on the other side as, तो पहले tan inverse y upon x लिख सकते हो. अभी ये थीटा आइसोलेट हो गया. So the procedure is to separate out the angle. tan inverse 1 किया तो 45 डिग्री सेपरेट आउट हो गया. tan inverse root 3 किया तो 60 डिग्री सेपरेट आउट हो गया. Separating out that angle with the help of trigonometric function is called as inverse trigonometric function. Okay, angle को separate किया. बाद में slowly you will get used to this. Okay, but now remember, these are inverse trigonometric functions. Okay, right. Now we will solve the problem
पोलर, दिस इज ए न्यू कंसेप्ट, समझने में शायद थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन एक दो बार देखोगे यू विल फॉलो एवरीथिंग परफेक्टली. दिस क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड इन कॉलेज एग्जाम्स. फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, x and y are given. From that we have to find out r theta. r theta means what? Polar coordinates. Okay? अभी ये कहाँ यूज होने वाले हैं that we will see. एकदम सब नहीं देखेंगे. We will first start solving the problem. So my job is to convert this into r theta. Polar coordinates में convert करना है. Okay? So we'll begin. ठीक है, चालू करेंगे. तो भैया अभी x और y दिया है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए है. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया मीन्स आई विल जस्ट राइट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमेशा x y बोलते हैं, राइट? ओके, सो व्हेन x एंड y आर नोन, पहली चीज मैं r फाइंड आउट करने वाला हूं. r का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. r is equal to root of x squared plus y squared. Just substitute the values. x is minus root 3 उसका स्क्वायर, y is 1 उसका स्क्वायर. Root of a negative number is positive and root 3 का स्क्वायर means 3. 1 squared is 1. So r is equal to 3 plus 1 is 4. Therefore, square root of 4 is 2. अभी आप बोलोगे स्क्वायर रूट इज ऑलवेज प्लस माइनस, बराबर है, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों लिया हम लोग ने? सोचो जरा, प्लस की माइनस, एक्चुअली इट इज प्लस माइनस, बट वी हैव टू निग्लेक्ट द नेगेटिव साइन. व्हाई? बिकॉज r represents the radius of a circle. Radius is never negative, so r is always positive. Okay, so r मिल गया, पोलर कोऑर्डिनेट्स का r मिल गया भैया. अभी थीटा फाइंड आउट करना है. हाउ डू यू फाइंड थीटा? फॉर्मूला कहाँ है थीटा का? tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x. सो पहले थीटा फाइंड आउट करो, एक बार यूज्ड हो जाएगा, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. सो r इज ओवर. अभी मैं थीटा फाइंड आउट कर रहा हूं. लिखो tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x. Therefore, just substitute the value along with the signs. Y is 1, x is minus root 3. माइनस साइन ऊपर ले लो. tan थीटा. अब एक जरा यू हैव टू बी केयरफुल. tan थीटा मिलने के बाद हाउ विल यू फाइंड थीटा? हाउ विल यू फाइंड थीटा? सो फॉर दैट यू हैव टू चेक नाउ कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है. एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? यहां से देखो, माइनस रूट 3 1. x coordinate is negative, y coordinate is positive. See,
10 स्टैंडर्ड स्टफ है. x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव ये साइड पे, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव. सो x इज माइनस, y इज प्लस. x is minus, y is plus. So angle lies in the second quadrant. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है. सो आई एम गोइंग टू से एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सो ये क्यों लिखना पड़ा मुझे? सो डिपेंडिंग ऑन द, अभी यहाँ पे देखो सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स ओवर हियर. सो इन द एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा इज गिवन एज 180 माइनस tan inverse y upon x. That is the formula. Okay, that is the rule. When the angle lies in the third quadrant, supposing if the angle was like this, एंगल मीन्स दिस एंगल, ये जो थीटा है ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में इट विल बी लाइक दिस, आवर एंगल इज लाइक दिस. थर्ड क्वाड्रेंट में इट विल बी लाइक दिस. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन इट विल गो इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट. पॉइंट पी विल गो ऑन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट. सो अपने को क्या दिया है? अपने को दिया है थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. क्यों? अभी मैंने बोला x coordinate is negative, y coordinate is positive. So decide the quadrant first. Now when angle lies in the second quadrant, अपना formula क्या है? Theta is equal to 180 minus tan inverse absolute value of y upon x. There are certain trigonometric rules which you have to remember for 11th and 12th. To decide the quadrant, these are the rules. Okay? फाइन. सो अभी दो स्टेप में अपना थीटा मिल जाएगा. अभी इसका तो काम हो गया. विल फाइनली राइट सो बिकॉज एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यहां से फॉर्मूला लिख लो. थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस tan इनवर्स x. Okay, sorry, tan inverse y upon x. लेकिन यहां पे फॉर्मूला यूज करते समय एब्सोल्यूट वैल्यू की साइन यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है. वी विल सी y. सो y अपॉन x तो यहाँ पे लिखा है ना, -1 अपॉन √3. सो थीटा इक्वल टू 180 माइनस tan इनवर्स -1 अपॉन √3. Absolute value of a negative number, you have to neglect the absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग है नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दो. डायरेक्टली यू कैन राइट वन अपॉन √3. माइनस साइन को निगलेक्ट करो. यहां पे किया नहीं है बिकॉज एक्चुअली आई रोट व्हाट इज tan इनवर्स y अपॉन x. ओके, tan थीटा की वैल्यू लिखी है, राइट. तो यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग है माइनस साइन गोज एंड यू हैव टू निगलेक्ट द नेगेटिव साइन. ओके, वन मोर थिंग. हाउ डिड आई गेट tan इनवर्स 1 अपॉन √3? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? पहले देखा था ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x. सो if tan theta is equal to minus, so if I take tan on the other side, what do I get? tan इनवर्स, और इसको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करने वाला हूं.
So tan goes on the other side as tan inverse. Today's new formula to be remembered. Okay, so this is the value. और absolute value क्यों? Because formula में absolute value है यहाँ पे tan inverse y upon x. This is the sign of absolute value. Okay, so because this is the sign of absolute value, minus sign चला गया है 1 upon root 3. Some things I have to repeat, बार बार repeat करने वाला हूँ मैं, because these are new things you should know. ठीक है, चलो. So theta is equal to 180 minus, अभी पहले डिस्कस किया था, what is tan inverse 1 upon root 3. देखो यहाँ पे माइनस साइन तो निगलेक्ट हो गया, इसलिए माइनस साइन निगलेक्ट करना है, बिकॉज ये फॉर्मूला में देयर इज नो नेगेटिव साइन. सो tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 कितना है? 30 डिग्रीज. सो दिस इज नथिंग बट 30 डिग्रीज. नाउ 180 माइनस 30, 50 डिग्रीज. सो दैट्स थीटा. हो गया आंसर. ओके, अभी फाइनल आंसर हो एम आई गोइंग टू राइट. फाइनल आंसर कैसे लिखने वाले हो? पोलर कोऑर्डिनेट इक्वल टू पी इक्वल टू आर थीटा. पोलर कोऑर्डिनेट का मीनिंग है आर थीटा. आर कितना है? 2. थीटा कितना है? 50 डिग्री, सॉरी 180 माइनस 30, 150 डिग्रीज. ओके, 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, 150 डिग्रीज. सो 2, 150 डिग्रीज. दिस इज आवर, these are our polar coordinates, right? समझ में आया? So because of these polar coordinates we can locate the point anywhere. इसका मीनिंग क्या है? 2 सेंटीमीटर रेडियस ले लो और 150 डिग्रीज ले लो, पॉइंट लोकेट हो जाएगा. क्लियर? अभी एक और एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल जस्ट डिस्कस करेंगे. इंस्टेड ऑफ माइनस रूट 3 1, supposing you are given plus root 3 1. Find the polar coordinates. साइंस चेंज हो गया, सिर्फ यहाँ का माइनस का प्लस हो गया. सो बेसिक रिमेन्स द सेम. इसको एक्स वाई बोलो. r इज, पहले फर्स्ट थिंग टू फाइंड इज r. So r is equal to root of x squared plus y squared, that is r की वैल्यू तो सेम आने वाली है. रूट 3 स्क्वायर्ड इज 3, 1 स्क्वायर्ड इज 1, 3 प्लस 1 4, रूट ऑफ 4 इज 2. सो r इक्वल टू 2. मैंने सिर्फ प्लस रूट 3 किया है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स चेंज होने वाले हैं. ओके, so r is equal to 2. Why do you find r? Because I require r. r theta should be our answer. तो r की वैल्यू तो सेम है. अभी tan थीटा देख लो. tan theta equal to y upon x. Okay, so y is 1, x is root 3. So tan theta is equal to 1 upon root 3. So tan को उस साइड ले लो. So theta is equal to tan inverse 1 upon root 3. tan goes on the other side as tan inverse. आज का नया डेफिनेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ tan के लिए नहीं है, साइन के लिए भी है. राइट अभी फर्क क्या है पहले सम और इसमें से, ये सब में से? रूट 3 x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव. सो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है. सो एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट.
ये फर्क है. इन द अर्लियर केस एंगल वॉज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन अभी पहले क्वाड्रेंट में ही है. ओके, सो पहले क्वाड्रेंट में अगर विल राइट डाउन एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. So when the angle lies in the first quadrant, ये पहला क्वाड्रेंट है, there is no change. थीटा इज इक्वल टू जस्ट tan इनवर्स y अपॉन x. जो आंसर आया है वही लिखना है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस करना है, वॉट एवर आंसर वी गेट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस. These are rules of trigonometric functions. But now you don't have to worry. Angle lies in the first quadrant. Therefore, theta is equal to tan inverse y upon x. ये basic formula. That means जो आया आंसर वही आंसर है, tan inverse 1 upon root 3. Same answer. अभी tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 कितना है? tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 इज 30 डिग्रीज. सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज. थीटा मिल गया, आर मिल गया. तो यहां पे 180 माइनस 30 किया नहीं है, बिकॉज एंगल वॉज नॉट लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. Followed? That is the rule. So r theta लिख लो, that's your answer. I will write over here now. यहाँ पे लिखता हूँ आंसर. I have some place over here. Polar coordinates p corresponds to r theta corresponds to r की वैल्यू तो 2 सेम है, थीटा सिर्फ 30 डिग्रीज है. राइट, दैट मीन्स देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रेडियस और थीटा सिर्फ 30 डिग्रीज लिया, तो 30 डिग्रीज प्रोट्रैक्टर से मेजर किया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल जाएगा. और अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिया है, बिकॉज बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव. आई एम ड्रिलिंग दिस इनटू योर माइंड अगेन एंड अगेन. फॉलोड? राइट, देयर आर फ्यू मोर प्रॉब्लम्स इन द टेक्स्ट बुक. डिसाइड द क्वाड्रेंट एंड देन यूज आर. तो सिंपल है, थीटा के लिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. करेक्ट? आई होप यू हैव फॉलोड. दीज आर न्यू थिंग्स. ध्यान से करो. कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस 30. 360 माइनस tan inverse y upon x, that is tan inverse 1 upon root 3, which is 30. So 360 minus 30 will be 330 degrees. These are the differences. So decide the quadrant properly. Followed? Okay. Get used to 11th standard. For 12th standard students, it is there in trigonometry how to find the polar coordinates. Equally important for 12th standard. Okay? Right. That will be all for today. We have revised everything. Inverse trigonometric function का भी थोड़ा रिवीजन हो गया. So we will meet you in another day or two. Bye. See you.